آج کی ویڈیو میں جو راز کی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی نا، پھر ان کی جہلیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خوش ہیں، آباد ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، سچویشن اس وقت اس طرح کی کریٹ ہو چکی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مہینہ بہت زیادہ صبر کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ایسی میں نہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بات کروں، نہ ہی میرے گاؤں والے جو ہے نا سٹاپ ہو جائیں۔ 10 دن 12 دن 15 دن میں تو صبر کرتا رہا، کیونکہ انہوں نے جو کل ویڈیو ڈالی ہے سکندر نے اور ساجدہ، جو میری سابقہ بیوی جو رہ چکی ہے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ اب اس سے میری جان چھوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے نا، وہ کم عرصہ نہیں ہوتا۔ جو میری بہنیں اور بھائی مجھے جانتے ہیں، 2-3 سال سے میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں، انہیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ جاوید کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے گاؤں میں ایک اچھے کام کے لیے کسی کے گھر میں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کام کیے ہیں الحمدللہ اپنے گاؤں کو مد نظر رکھ کے، کیونکہ ان کی جس طرح کے پوزیشن اور حالات تھے ان کو مد نظر رکھ کے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے گاؤں کو سنواروں۔ دیکھیں، یہ میرا ایک پرسنل معاملہ تھا، جو میں نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے صابرہ نے تنصیل لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حالات بنیں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، میں اس وقت جو ہے نا، کل والی جو سکندر نے ویڈیو ڈالی ہے جس میں وہ جہلیت کی اس نے انتہا کر دی ہے۔ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں فساد بھی ہوتے ہیں، برادری میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو اس نے تھامنیل لگایا ہے، جس میں اس نے اپنا پورا ہاتھ اپنے بہن بھائیوں کی طرف کیا ہے۔ اس نے مینشن تو یہ کیا ہے کہ وہ ہماری طرف کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ویڈیو تمام بہنوں اور بھائیوں کے سامنے آتی ہے تو اس پہ ہاتھ جو ہے نا سیدھا انسان کے چہروں پر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یعنی کہ ہم اسے جس طرح بولتے ہیں نا کہ سٹریٹ فارورڈ اپنے ویورز کو بھی، مجھے تو چلو کہتا وہ ایک الگ بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ جو ویورز دیکھ رہے تھے وہ ہاتھ ان کی طرف بھی جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مینشن تو مجھے کر رہا تھا، چلو ایک بندہ ہوتا ہے سامنے کھڑ کے اکیلے کھڑے ہو کے ایسا کرتا ہے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنے ویورز کے سامنے یہ اپنا ہینڈ سامنے کرنا اور لعنت دینا، یہ کس میری بات سنیں، کس اسلام میں ہے، ٹھیک ہے، اور کس مسلمان میں یہ باتیں ہوتی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لوگوں پہ الزام تراشی کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سکندر اور جو ساجدہ ہے سابقہ میری بیوی، میں مانتا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب چینل چلایا ہے، آپ کے چینل کی سٹارٹنگ اب آ کے کیوں ہوئی ہے؟ جب میری صابرہ سے شادی ہوئی ہے 2 سال آپ کہتے ہو کہ میں نے آپ کو منانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی میرے پاس نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو سکندر یہ بات کر دے، سکندر کو میں ساتھ لے کے گیا تھا، اس کے ابو کو میں ساتھ لے کے گیا تھا۔ میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ سکندر کا ابو بھی میرے ساتھ ساجدہ کو منانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ساجدہ تم اپنی زندگی برباد نہ کرو، کیونکہ تمہاری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب تمہارا والد جو ہے نا وہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، لہٰذا تم ایسا کرو کہ جاوید نوکری کو چھوڑو۔ 4000 کی نوکری کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ تمہیں فیسلٹی دینا چاہتا ہے، ہر قسم کے پیسے بھی دینا چاہتا ہے، تو تم گھر بیٹھو عزت سے، ٹھیک ہے نا۔ اور جاب کروانے کے لیے یہ خود نہیں گئی، جاب بھی الحمدللہ اس کی میں نے ہی لگوائی تھی۔ پھر میں نے اس کو چھوڑنے کا جب کہا نا، اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ بیچ میں سے کیا اس کے ذاتی مفادات پیچھے چھپے ہوئے ہیں یا کس سے یہ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ یہاں سے تو وہ تقریباً صبح 8 بجے جاب پہ چلی جاتی تھی، میں اسے چھوڑ آتا تھا۔ وہاں پہ وہ این جی او میں کس طرح کام کری ہے، کن سے کنیکٹڈ ہے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی اس پہ الزام تراشی نہیں کی تھی۔ میرا ایک بڑا کزن ہے، اس کو بھی میں ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا جس طرح کا تم اسٹامپ پیپر چاہتی ہو تم آؤ گھر میں، ٹھیک ہے، جو بھی پیسے چاہتی ہو کسی اور کو کہہ دو، میں اسٹامپ پیپر کر دیتا ہوں۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو یہ والد کی بات کر رہی ہے کہ میں اپنے والد کو حج کروانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، 2 سال کے عرصے میں اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس نے اپنے والد کو مجبور کیا، اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے علیحدہ کمرہ بنوا کے دیں۔
ताकि कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए तो आपका इतराज ना हो। हालांकि जब इसने यूट्यूब चैनल बनाया, आप बहन भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, इसके भाई का नाम नासिर है जो कि पढ़ा लिखा है, वो भी इसे यूट्यूब चैनल बना के दे सकता था। पहले तो ये यूट्यूब के बिल्कुल खिलाफ थी, कहती है ये कोई काम है, मैं काम क्यों करूं, मैं तो जॉब करूंगी। जब मैंने इसको नहीं कहा, मैंने जिंदगी में इसको नहीं कहा कि आप यूट्यूब पे आओ, पहली वीडियो ही इसने आके अगेंस्ट डाली, 8 वीडियो इसने मेरे आके अगेंस्ट डाली। आप यहां से सोच सकते हैं कि इसको गुस्सा किस बात का था। सिर्फ और सिर्फ ये गुस्सा है कि मैंने साबरा से शादी क्यों कर ली है। और 1.5 साल मैं इसका मिशन हॉस्पिटल मुल्तान में इसको लेके जाता रहा। मैंने कहा हमारी औलाद नहीं है तो चलो, कहती है कि तुम्हें कोई फॉल्ट है जिस वजह से औलाद नहीं होती। मैंने कहा चलो चेक करवाते हैं, दोनों इकट्ठे ही चेक करवाएंगे। तो इसने मेरी रिपोर्ट करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब इसको पता चला कि इस जवेद की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई, मेरे फॉल्ट की वजह से मुझे बच्चा नहीं हो रहा, फिर मुझे कहती है मैं ऑपरेशन नहीं करवाती, आप ऐसा करें दूसरी शादी कर ले। डायरेक्ट मुझे कहती है वहां पे मुल्तान में हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो जो औरत अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने घर को बर्बाद करके चली जाए, मुझे बताएं मर्द क्या कर सकता है। मर्द तो ये कर सकता है ना, उसे समझा सकता है, उसे अपने पास बिठा के प्यार से बात कर सकता है, लेकिन ये हरगिज नहीं कर सकता कि उसको पकड़ के बांध के रख दे। अब मुझे नहीं पता कि उसकी, अल्लाह माफ करे, मैंने कल भी ये बात की थी, मुझे नहीं पता कि वो वहां पे स्कूल में उसके साथ किसका अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से उसने अचानक ये फैसला किया है। और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद बच्चा क्यों नहीं हुआ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हालांकि इसको इतना बड़ा फॉल्ट नहीं था जो बच्चा ना होता। कोई पता नहीं है कि वो टैबलेट खाती रही है इस दौरान, कोई ऐसी टैबलेट, गर्म टैबलेट खाती रही है जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो सका। उसके क्या मकासद थे जिस वजह से उसने मुझे छोड़ा है। उसने मुझ पे केस करवाया है, उसने अपनी तनसीह खुद ली है, मैंने ना ही उसे मुंह से तलाक दी है। और मैं इस बात के लिए मस्जिद में भी जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। मस्जिद से बाहर होके खड़े होके वो ये बात कर दे कि मुझे ये जवेद को मनाने के लिए कोई नहीं है तो मैं मान जाऊंगा, ऐसे बातें नहीं होती। यूट्यूब इसलिए नहीं बनी, वो कहते हैं ना कि हमारी सराकी में एक मिसाल है, अग्गू 14 आप नंगे पिछू 14 आप नंगे। मतलब ये है कि अगर हम आगे से बात करेंगे तो आप नंगे होंगे, पीछे से बात करेंगे तो खुद नंगे होंगे। आपने जिस तरह जाहिलाना बिहेवियर से जो है ना कल वीडियो डाली है, जिस तरह आप लानत बुझा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ पूरी जिंदगी बोलते रहेंगे खिलाफ, तो आप बोलते रहो। क्या आप समझते हैं कि आपका इस तरह इमेज बन रहा है? फैसला हमारी जिंदगी का था। जिस तरह तुमने तनसीह ली है तो साबरा ने भी तो तनसीह ली है, ये अपनी खुशी से आई है। क्या मैं तुम्हें बांध के रोक सकता था? मुझे बताओ। तनसीह का मतलब यही होता है कि खुद अपनी मर्जी से औरत को एक शरई और एक कानूनी हक है कि वो अपने मर्द की अगर सिर्फ शक्ल को अच्छा नहीं समझती ना, वो उससे दूर हो सकती है। तो ये उसका रवैया था, ठीक है। बाकी हमारी शादी हुई है, हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। इसकी जो है ना तनसीह हुई है जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। जब वो नहीं रहना चाहती, उसके बच्चे हैं, ये हमारा पर्सनल मामला है। आपने सिकंदर इसका यूट्यूब चैनल प्लानिंग के तहत बनाया है। 3 महीने आपने इसको बोला है कि आपने आना है, पहली वीडियो मेरे साथ बनानी है। आप वैसे तो उसे को भाई बोलती हो, मैं मानता हूं कि आप यूट्यूब पे उसको भाई बोल रही हो, सब कुछ कह रही हो, ये भी मैं मानता हूं। वो भी आपका भाई है, मैं मानता हूं। जब आपके भाई पढ़े लिखे हैं, आप घर में बैठ के जाके वीडियो बनाओ, ठीक है। आपने उस वक्त क्यों टारगेट मुझे किया है जब साबरा यहाँ पे आई है? पहले आपको अगर याद था, आपको पता था कि जवेद खराब है, ठीक है ना, मैंने उसे तनसीह ले लिया, इसके अगेंस्ट में बातें करूं। उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया 2 सालों में, ठीक है। सिकंदर ने कल एक और बात भी की है साबरा के बारे में, जो ये कह रहा है कि आपने मेरी बीवी के बारे में इतने गलत अल्फाज यूज किए हैं। हालांकि अल्फाज गलत नहीं थे, ये बात हकीकत भी है, लेकिन मजीद मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना जब खुद पे कोई बात आती है ना। तो इस वजह से किसी दूसरे पे बात करने से पहले खुद सोच लिया करें कि हम अगर किसी की बहन बेटी पे बात कर रहे हैं तो कल को हमारे पास भी बात आ सकती है। तो आप ये कह रहे थे कि साबरा के दांत सही नहीं है, ये उल्टे तरीके से चलती है, ये ऐसे सीधे चलती है, इसमें ये नुक्स हैं, जवेद ने कैसे शादी कर ली है, इसका चेहरा सही नहीं है। मुझे ये बताएं, इंसान को कौन बनाता है? अल्लाह ताला की ज़ात बनाने वाली है इंसान को। उसका चेहरा मुबारक, उसके पाँव हाथ, अल्लाह ना करे आपकी औलाद में से, आपकी बच्चियों में से, आपके बच्चों में से किसी के साथ ऐसा हो कि उसके दांत टेढ़े पैदा हों, किसी की टांगे सीधी पैदा ना हो, आपको कितनी तकलीफ होगी। सिकंदर, कम अज कम आप ये सोच लिया करो कि आप और मैं
आप चाहे मुझे खुद से कनेक्टेड ना रखो, इस बात का मुझे भी पता है कि आप जहलियत की किस हद तक पहुंच चुके हो। लालच की खातिर, लोगों के कहने पे, लोगों के मशवरे पे किस हद तक पहुंच चुके हो। तो एक जो नागिन होती है ना, वो मौके का इंतजार करती है, ठीक है ना। जिस तरह ये इंतजार कर रही थी कि जावेद की कोई बात मेरे हत्थे चढ़े और मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और जाके सारी बातें अपने दिल की भड़ास जो है वो निकालूं। तो मुझे तो सिर्फ आपसे गिला नहीं है, आप तो मेरी लाइफ पार्टनर रही हो 6-7 साल, ठीक है। और आप जो ये बातें कर रही हो, ये आप कहती हो कि जावेद के पास खर्चा नहीं था, ये मुझे फ़ोन करवाता था, कॉल करवाता था। मेरे बहन भाइयों को भी इस बात का पता है कि पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास तो चलो कमी थी पैसों की, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे वालिद के पास तो कमी नहीं थी। आपको इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि आप जो प्लेटों का, सामान का, जितने भी जहेज़ का आप दावा कर रही हो, ये मेरी प्लेटें हैं, ये मेरी चमचियाँ हैं, ये मेरा शीशा है, ये मेरा जग है, तो 20,000 में कितना सामान आता है प्यारे व्यूअर्स, ठीक है। तो 20,000 का सामान इसने अपने जहेज में ये लेके आई थी, जिसमें 50,000 मुझसे ये लेके गए थे इसके वालिद, ठीक है। तो वही सामान इन्होंने बनवा के हमें दिया और इनका जो कर्जा था वो उतरवाया गया, ठीक है। उसके बावजूद भी ये लोग खुश नहीं हुए। असल अब मेन वजह मैं बताता हूँ इसका, ये इतना बड़ा डिसीजन लेने का। वरना कोई भी औरत जानबूझ के ना ऐसे 1 मिनट में जाके किसी से ना लाताल्लुक नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न होते हैं। मेरी फुफ्फो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नेक खातून थी, जिसकी ये बेटी है, मेरी कज़न है, साफ बात है, वो इस दुनिया से चली गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। जिस दिन उस घर से वो गई है ना, इनके घर का बेड़ा गर्क हो गया है, ये आज़ाद हो गई है। इसने कहा कि मैंने बैग उठाना है, डालना है और बस इस घर से चले जाना है, वापस मुड़ के नहीं देखना। मैं जिसके पास मर्जी है जाके बैठूं, ना ही मुझे अपना बाप रोके, ना ही वो भाई रोकें, मुझे अलहदा होना है। और पूरी यानी कि ऐसे समझ लें कि अपनी बरादरी से भी और इससे भी अलहदा होना है। इसके पीछे क्या रीज़न है अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का जहां तक मुझे अंदाज़ा लगता है, अनकरीब बहुत जल्द ये वजह भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि उसने जो इद्दत पूरी की है वो अपने घर में बैठ के नहीं की, ठीक है ना। जहां तक इद्दत की, ये तो हज़ारों सवाल कर रहे हैं ना इस पे, साबरा पे, ठीक है ना। तो ये ऑफिस में भी जाती थी, चलो काम है वो करना चाहिए, ठीक है, तो काम में भी इद्दत पूरी हो जाती है। इस बात पे, इस टॉपिक पे चाहे मैं बात करूं या ना करूं, लेकिन ये जो कह रही है ना कि यूट्यूब पे आके, तो इसने बिल्कुल घर में बैठ के इद्दत पूरी नहीं की जिस तरह ये चाह रही थी। और बाकी ये है कि यूट्यूब पे काम करो, तुम्हें कोई नहीं कुछ कह रहा, अपना रोजी रोटी करो, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। कि वैसे भी जो है ना, इसने वफा क्या करनी थी, बाकी भी मेरी अपनी बरादरी में जहाँ पे इनको बैठ के ना मैंने खाना खिलाया जिन लोगों को ना, वो भी मेरी आस्तीन के सांप निकले हैं, यकीन करें, जब से मैंने साबरा से शादी की है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना इनको तकलीफ हुई है, ठीक है ना। जो भी मेरे अगेंस्ट वीडियोस डाल रहे हैं आज पूरी बरादरी वाले, जो खाने के काबिल हुए हैं, जब कुछ नहीं होता ना इंसान के पास, वो कम अज कम मिन्नत जारी करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अपने गांव के लिए जितने भी फैमिलीज की हेल्प की है या मदद की है, मुझे ये इस वक्त का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया अपनी हर बात, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने गांव के लिए कुछ भी अभी नहीं किया। मैंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना है अपनी फैमिलीज के साथ। अगर अपनों ने वफा नहीं की ना, मुझे अपनों से अब वफा की तवक्को भी नहीं है। और वो लोग, वो मेरे दोस्त, वो मेरे बहन भाई, वो मेरे कज़न जो आज मुझ पे सवालात उठाते हैं, खुद पे सवालात उठाते हैं, वो किसी को नंगा नहीं कर रहे। और एक बात और करना चाहता हूँ, सिकंदर ने कल ये भी कहा कि मेरे पास तो यूके से कालें आई हैं। कोई मेरी बहन ये कह रही थी कि जावेद ने इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। तो सिर्फ आपसे कनेक्टेड लोग नहीं है, हमसे भी कनेक्टेड है। जो मेरी बहनें वीडियोस को देखती हैं वो भी यही कहती हैं कि आपकी बरादरी में कौन सा तमाशा लगा हुआ है। एक फैसला था, वो आपकी जिंदगी का था, आपने कर लिया। आज तक आपको कुछ ना सुसर याद था, ना सास याद थी, ना सोनिया याद थी, कोई भी याद नहीं था, ठीक है ना। अचानक आके आपको इतनी बड़ी तकलीफ मिली है, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि कितनी आपके खुद के बच्चे हैं, आप उनके बारे में इतना सोच लो ना। अपने गांव वालों को की हेल्प कर रहे हो, उनके बारे में सोच लो। और ये प्यारे व्यूअर्स, एक और आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि जो भी मेरी बहनें और भाई बाहर रहते हैं, यकीनन वो हमारे व्लॉग्स देखना चाहते हैं,
यकीनन वो हमारी पर्सनल लाइफ में इतनी जाहिलाना बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। होती हैं बातें बरादरी में होती हैं, डिसीजन भी बड़े बड़े हो जाते हैं, फैसले भी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप इस तरह की जो है ना जबान इस्तेमाल करो जिससे लोगों की भी दिल आजारी हो। हमें तो आपने दिल आजारी हमारी तो आपने की है, वो तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। देखें, आप जब गालियां देते हैं ना, चाहे आपके मुंह से जो भी वर्ड एक दफा निकल जाते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आते। और वो वर्ड जिसको जितनी तकलीफ देते हैं, अल्लाह ताला उसका हिसाब उससे जरूर लेगा, ठीक है ना। बाकी मुझे पता है कि ना ही अपनों में वफा थी, ना है और ना होगी। जिंदगी में मैंने अपनों पे इतबार करके ना बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका सिला मुझे रब ताला की जात देगी जो मैंने अच्छे काम किए हैं। अगर मैंने कोई बुरा काम किया है तो यकीनन उसका जवाब दे मैं अल्लाह ताला की जात के सामने जरूर होऊंगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने यूट्यूब चैनल बनाओ। हाँ, अगर आप ये समझते हो कि पूरी जिंदगी आप खुद वीडियो में ये बोला है कि आप मेरे अगेंस्ट बात करते रहोगे, तो करते रहो। आप ये समझते हैं ना हमारे पीछे 3 लोग खड़े हैं, ठीक है ना, 4 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं जो हमारी सेफ्टी के हैं। हम जितनी मर्जी है बात कर लें, जो कुछ मर्जी है करा दें, ये करा देंगे, हम वो कर दें। आप यकीन नहीं मानोगे, अल्लाह ताला से मैं डर के कह रहा हूँ। पहले नंबर तो मुझे अल्लाह ताला की जात पे यकीन है कि पूरी दुनिया भी चाहे आपके खिलाफ हो जाए ना, तो जब तक अल्लाह ताला ना चाहे आपका कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। इस बात का मुझे अल्लाह पे यकीन है। और जहां तक बंदों की बात कर रही है, अपनों से ज्यादा मुझे गैरों ने सपोर्ट की है, मेरे दोस्तों ने, मेरे वो लोग जिनकी मैंने सपोर्ट की है। आज वो मेरे एक नहीं 1000 बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप सिर्फ मुझ पे उंगली उठाएंगे, मैं तो ये लड़ाई फसाद झगड़े ये मैं चाहता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप मुझ पे सिर्फ उंगली उठाएंगे, ठीक है ना। आप ये ना समझे कि उसका मैं चुप करके बैठा रहूंगा, ये आपकी भूल है। मुझे अपना डिफेंस करना और साबरा का डिफेंस करना आता है और इसकी फैमिली का डिफेंस करना आता है। मैं किस तरह डिफेंस करूंगा वो मुझे पता है। मैं ये बातें अल्लाह से डर के कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई आपसे डरता नहीं हूँ। आप खिलाफ आपने वीडियो डालनी है तो डालते रहो। आप तो जिस तरह तुमने जो है ना मेरी बहनों पे बात की है, तुमने सबसे पहले साबरा पे बात की है, उसके बाद मैंने ये बात कल की है, तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई ना। और आपकी जो बहनें हैं, ठीक है, वो मेरी कजने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जिस तरह वो मेरी बहनें 3 हैं, आपकी भी बहनें हैं, आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। आज भी वो मेरे लिए बहनें हैं। कजनें हमेशा बहनें होती हैं। हालांकि मैंने उनके हाथों की रोटी नहीं खाई, ठीक है ना। लेकिन आप 15 साल मेरे घर में मेरी अम्मी से आप अभी 10 दिन पहले माफी मांग के गए हो। इनका आपने जो है ना नमक खाया है, और इंसान को इतना नमक हराम नहीं होना चाहिए जिस तरह आप नमक हराम निकले हो, मुनाफिक निकले हो। जहलियत की आपने इंतहा पार कर दी है। इंसान को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये वर्डिंग मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होंगी, लेकिन जो सच बात है वो यही है कि आपने जो जाहिलाना रवैया इख्तियार किया हुआ है ना, आप इसे मजीद उजागर करो। जो मेरी बहनें और भाई बाहर देख रहे हैं, यूके में देख रहे हैं, पाकिस्तान में मेरी बहनें और भाई वीडियोस को देखते हैं, ठीक है ना। आखिरी बात मैं करना चाहता हूं कि इन लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं होता था ना, जब 1 टका भी नहीं होता था, हम मेरी बरादरी की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इनका एटीट्यूड लेवल बिल्कुल बेस्ट होता था, जबरदस्त होता था। ये बड़े प्यारे अंदाज में दुआओं के साथ, प्यार के साथ अपने व्यूअर से बात करते थे। पैसा आ गया है ना, और आप बहनों ने दिया इनको पैसा, ठीक है ना। मैंने तो कोई कोठियां नहीं उसरवाई, ठीक है। मेरे वालिद का दिया हुआ जो कुछ था वो मैंने लगाया। मैंने यूट्यूब से इतना पैसा ज्यादा तो ज्यादा मैंने 4 साल में 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया कमाया होगा, वो भी अपने यूट्यूब चैनल से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि जितनी भी मेरी बहनों ने मुझे पैसे दिए किसी फैमिली सपोर्ट के लिए, तो उन तक पूरी अमानत यहाँ पे पहुंची है। यहाँ पे तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो मेरी बहनों से एक पंप का, जो पानी का पंप लगता है, वहां से 35,000 रुपया लेते हैं और 20,000 रुपया लगाते हैं। वो भी यही आस्तीन के सांप है, मेरे दोस्त है, ठीक है। उनमें जितना पैसा, जितना ये मुझे कहते हैं ना कमीशन खा रहा है, सोनिया से इसने कमीशन खाया है, ये किया है, वो किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बहन भाइयों को बताऊंगा कि आप जो कमरा बनवा के देते हैं उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं, आप जो पंप लगवा के देते हैं उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं, आप लोगों ने इनको कितने पैसे भेजे हुए हैं। ये मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप उनकी सपोर्ट ना करें, उन फैमिलीज की आप उनकी जरूर सपोर्ट करें, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट कनेक्टेड हो उनसे पूछें, उन फैमिली से पूछें
کہ کیا یہ جو پمپ لگا ہے، مجھے یہ بتائیں جو آپ سے 35,000 روپیہ لیتا ہے اور 9,000 کا پمپ لے کے اس پہ سیٹنگ کروا کے 20,000 خرچہ کرتا ہے، 15,000 روپیہ اس کو بچتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ 50 پمپ لگائے تو مجھے یہ بتائیں کیا اس کے گھر میں ماربل نہیں لگیں گے؟ جو ایک دفعہ حرام کا عادی ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اسے وہ حرام ضرور پچ جاتا ہے۔ اور ہماری برادری کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، کوٹھیاں بھی اسروا رہے ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے۔ میری UK میں بہنیں بیٹھی ہوئی اپنی جابز کر کے، اپنی محنت کر کے جو ہے نا پوری برادری پہ، پوری فیملیز پہ ترس کھا کے پیسے دیتی ہیں۔ وہ یہ ہرگز نہیں کہتی کہ آپ فیملیز کو پورا پیسہ نہ دو، ٹھیک ہے نا؟ ان بچیوں کی جو یتیم بچے ہیں ان کی شادی کرواتی ہیں۔ یہ جو YouTube چینل اب اس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، یقیناً آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ساجدہ نے YouTube چینل جب بنایا ہے تو یقیناً اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بیوہ ہو چکی ہے۔ یہ بیوہ ہوئی نہیں ہے، یہ خود بیوہ ہوئی ہے جان بوجھ کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کے۔ تو ایسوں کی ہیلپ کرنا بھی میرے خیال میں رائٹ بندے کو رائٹ پیسے دے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ مدد ہو سکے ان سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوں۔ اب میں نے آصف فیملی کی سپورٹ کی ہے، آپ بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ آصف فیملی کتنی ڈیزرویبل فیملی تھی۔ ان بہنوں کی بھی میں نے سپورٹ کی ہے، ان کو پتہ ہے، سمینہ آپا ہوگی، آسیہ ہوگی، سب ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سا ہے جو جن کی میں نے ہیلپ نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کر رہی ہیں؟ 1 سال میں ان کا جوڑا نہیں تبدیل ہونے میں آتا، لاکھوں روپے لے چکی ہیں YouTube پہ، وہی جوڑا، وہی زمین دکھا رہے ہیں، کوئی کمرہ نہیں دکھا رہے۔ جہاں پہ جاتے ہیں ڈونکی پمپ لگوا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ پمپ لگ گیا، پانی نکل آیا، یہ نہیں پتا کہ اس پہ پیسے کتنے خرچ ہوئے ہیں۔ آپ بہن بھائیوں کو تو نہیں پتا نا، تو یقیناً پیسے دیں، ان سے ضرور رابطہ کریں جو جس فیملی کی یہ ویڈیوز بناتے ہیں، کیا آپ کو کتنے پیسے دیے ہیں انہوں نے اس ڈونکی پمپ پہ یا اس کمرے پہ یا اس شادی پہ، کتنا خرچہ آیا ہے؟ ان سے پوچھیں نا، ان سے تو آپ پوچھتے رہیں گے، یہ تو کہیں گے کہ ہم نے 2.5 لاکھ روپیہ ایک کمرے کا لے لیں گے، 2 لاکھ روپیہ ایک کمرے کے لے لیں گے، 1,20,000 30,000 میں کمرہ تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کمیشن والی بات، مجھ سے کہتے ہیں آپ کمیشن والی بات۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ لوگوں کے راز چھپانے والی ہے۔ آپ روزی روٹی کرو، آپ اپنے YouTube چینل بھی چلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقی دے، لیکن پیسہ آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس پہ چاہے جتنی مرضی ہے بیٹھ کے جاہلانہ طور پر باتیں کریں۔ ہمارا میسج، ہمارے پاکستان کا میسج جو ہماری پوری برادری ہے UK میں، آؤٹ آف کنٹریز، یہ کیا میسج جا رہا ہے کہ عورتوں کی طرح بیٹھ کے جھگڑا کرتے ہیں یہ لوگ، ایک دوسروں کی بیویوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ تنقید نہ کرتے، آپ حد پار نہ کرتے، 1 مہینہ تو صبر کیا ہے میں نے، ہزاروں لاکھوں باتیں آپ نے کی ہیں، اپنے YouTube چینل بنا لیے ہیں، ان کے واچ ٹائم پورے کر لیے ہیں، روزی روٹی لگ گئی ہے، آپ تو خدا کا نام لو چپ کر لے جاتے نا، اپنا روزی روٹی کرتے نا، میں بھی چپ ہو جاتا۔ 1 مہینے کے بعد اگر میں آپ کو اب چپ آپ کو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ چپ نہیں کریں گے تو میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا، آپ یہی سمجھتے ہو؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے نا ان کو۔ وہ کل کہہ رہے تھے نا سکندر بھی اور ساجدہ بھی کہ اس کے بچے ہیں، اس کو بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ساجدہ میں تو آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی اولاد نہیں ہے نا تو آپ زندگی میں کبھی یہ دکھ سمجھ ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ دکھ وہ سمجھ سکتے ہیں جس کی اولاد ہوتی ہے۔ اور سکندر سے میں یہی کہنا، آج تک میں نے اس کو بھائی مانا اور آج بھی میں بھائی کہہ رہی ہوں، سکندر بھائی سے یہی کہہ رہی ہوں کہ خدا کا خوف کرے، خدا سے ڈرے۔ جو باتیں کل آپ نے مجھ پر کی ہیں نا، خدا نہ کرے کہ آپ کا بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کل سکندر بھائی نے دعوت کی ہے دن میں، تو ایک ویڈیو وہ ڈالتا ہے کہ لوگوں پر باتیں کرنا کہ یہ بندہ اس طرح ہے۔ آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم نے شادی کی، اپنا فیصلہ کیا، تو آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے بچوں کی بات جہاں پر آ جاتی ہے، ان کو میں خود دیکھ لوں گی کہ میں نے ان سے کیسے بچے لینے اور کس طرح سے ان کو پیار سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صابرہ، انسان کو نا میرا یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو بھی ایسی بد دعا اللہ کرے نہ لگے، کسی کی کسی ہم کو بد دعا نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے دل سے تکلیف ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ وہ ہم چاہے نہ بھی چاہیں گے نا، پھر وہ آپ کو لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کو بدنام نہ کریں۔ آپ ویڈیوز ڈالیں گے، ہم بھی صبر کریں گے، 10 دن صبر کر جائیں گے، 5 دن صبر کر جائیں گے، پھر آپ کے اگینسٹ ویڈیو، ہم آپ کی باتوں کا تو جواب دیں گے نا، کیونکہ ہم نے بھی YouTube پہ کام کرنا ہے۔ تو پھر یہی کہہ رہا ہوں، آخری میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو جو بھی میری برادری میں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں میری برادری میں، وہ ہم پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات نہیں سوچتے، دن کو آپ نے دعوت کی ہے
ठीक वो है ना? दावत, मेरी वो बात नाम सुनिए। की दावत होती है ना, नाम की शाम दावत को होती उन्होंने है। पता क्या है, उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, हाँ। खुदा का नाम ले आप दावत करके फिर मुझ पर 100 बातें, हजारों बातें क्या करके फायदा है आपके दावत करने उसके का अल्लाह बाद के नाम आप अपनी बीवी को पे? आप अस्पताल अम्मी से, लेके मेरी जा अम्मी रहे से आप माफी मांग के गए हो, क्या फायदा है आपको? 20 दिन पहले आप रोते रोते हुए हैं कि जवेद मैं बीमार हूँ, अम्मी से आपने माफी मांगी है, आपने कहा है यार रिश्ता हमारा है, ये हमारा जाती एक आपकी ताल्लुक बन लड़ाई चुका है। करने से, आपकी चाहे आप कुछ पूरी भी करने से जिंदगी कुछ बातें करने से हमारा तो रिश्ता फायदा तो कुछ नहीं हो टूट जाएगा, और साजदा भी आपका भी कुछ नहीं होने वाला। आप YouTube चैनल चला लोगी, व्यूज भी आ जाएंगे, बातें करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला किया है, जिस तरह हमने अपनी मर्जी से किया है। अब फैसला कर चुकी हो तो रोने धोने का फायदा। बाकी आप ये करेक्टर कि की एक ना मिनट, जवेद और ना मैं, अब हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपकी बातों का जवाब जवाब जरूर जरूर दूंगा, देंगे, लेकिन ठीक है ना? ये है कि खिलाफ जिस नहीं तरह- है, हम मुसलमान हैं इंशाअल्लाह उल अजीज। हम ये नहीं कहते आप नॉन मुस्लिम हो, आपने कलमा पढ़ा है, आप ये ना कहो हमें भी कि हम मुसलमान नहीं है, आपके कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना? हमने कलमा पढ़ा है, तो उस कलमा की जो है ना, हमने वो ये रखना है कि एक कलमा जो इंसान पढ़ लेता है ना, वो किसी की दिल आजारी नहीं करता, वो लोगों पे ऐसे गंदे अल्फाज यूज नहीं करता जिस तरह आपने कल किए हैं। तो बिल्कुल ये रवैया अपना चेंज कर दे। पूरी बरादरी को आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितनी मर्जी वीडियोस डालते रहेंगे ना, आपके वक्ती तौर पर तो व्यूज बढ़ जाएंगे, आप फेमस भी हो जाओगे, लेकिन आपकी एंडिंग काफी ज्यादा बुरी होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना नुकसान कर रहे हो, यानी कि अपनी, अगर आप वीडियो डालोगे फिर हम वीडियो डालेंगे, ये क्या होगा? ठीक है ना? हम एक दूसरे को ऐसे समझ लें कि कीचड़ में जब बंदा कोई रोड़ा अटकाता है ना, तो गंद उसके ऊपर आता है। आप कीचड़ अटकाते रहेंगे, फायदा कुछ आने वाला नहीं है। कोई अच्छा मैसेज दे, आप वीडियोस डालें, आपकी जिंदगी का अच्छे फैसला। वीडियो बनाएं, और मैं जिंदगी सिकंदर से की ये बात कहना करें। चाहता हूँ कि अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप दूसरी शादी कर लो, तीसरी कर लो, 4 बच्चों की माँ से कर लो, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। मैं जिंदगी में आपके खिलाफ वीडियो नहीं डालूंगा। आप लोगों के चैनल भी तैयार करो, उनकी मदद करो, ठीक है ना? ये नहीं करो कि जिद में आके करो, किसी को टारगेट करके उनके चैनल बनाओ। अब अभी चली गई है, बस मैं वीडियो को यही एंड करना चाहता हूँ, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए, अपनी इज्जत को, अपने बहन भाइयों को, अपनी कजनों की इज्जत को, अगर आपको खुद की इज्जत जिस तरह प्यारी है ना, सबको इज्जत प्यारी होती है, उसको उछालेंगे फायदा कुछ नहीं आना आपका, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप वीडियो डालते रहें, फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जिस मुनासिब बात का हमें जवाब देना होगा हम जरूर देंगे। अपना रखिए ख्याल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।